Hello everyone. Let us start discussing some of the questions of 10th class English grammar question answers. So as you have seen here, I have written the main question number 3 in the question paper of 9th as well as 10th class. There will be a question for the grammar part. So in that part, what the question will be given, attempt any 10. What is given? Attempt any 10. Any 10 answers you have to attempt. Of the 12, how many will be given? 12 will be given of the following questions. Let's start. I have written one question here. Just we will understand each and every question and how the answer to be written. Let's start. Fill in the blanks by choosing the correct option to complete the sentence. What is given? Fill in the blank. What we have to do? We have to fill the blank by choosing the correct option. Options are given here. 4 options are given. We have to choose the correct option to complete the sentence. We have to complete the sentence. Let's start what the sentence is given. When we hear commentary, one thing we have got a clue here. We hear is given here, but a V1 form of the verb means it is present indefinite tense. Okay, let's see what will come in the blank. Commentary on the radio we easily does. अब easily हम क्या कर पाएंगे? Visualize, visualized, visualizing, will visualize. So here it is present tense, so that will also be present tense. So visualized will be not the answer. Visualizing, there is no helping verb, so this is also not. And then will visualize करेंगे आगे, क्योंकि आगे what is happening present ही दिया हुआ है, तो obviously हमारा ऑप्शन ये भी कैंसिल होगा. कौन सा? Visualize. So how we have come to know? From looking the first sentence. So every time we have to check out some or another way, it is given some clues to identify the answer. So the second question is, read the conversation between teacher and the student. Here teacher and student both are doing conversation. We have to listen. Complete the sentence by reporting. What he is asking? By reporting करना है हम लोगों को. In the sense indirect speech में लिखना है. The students reply. Whose reply we have to check out? The students reply we have to report correctly. The teacher, what teacher is saying? For how many hours do you study at home, Rakesh? Teacher is asking to Rakesh, for how many hours do you study at home? Rakesh said, I cannot study for more than half an hour. Rakesh reply. We have to reply the Rakesh reply. We have to report. See here. The teacher asked Rakesh about the number of hours he studied, to which Rakesh informed. क्या Rakesh inform कर रहा है? देखिए, I cannot study. I changes to informed. That connector we have to use. Inform that. I changes to Rakesh is saying. So I changes according to the subject. तो I जाके क्या होगा यहाँ पे? He cannot changes to could not. Study will remain as it is. Could not study for more than half an hour. In our examination, we have to write from here to here, but there is no need of writing these all things. To save the time, you need to write only that he could not. What are the changes we have done here? We have used just that, he, and could. Just remaining part is as it is. For these 3 changes, you people are going to get 1 mark. So here the third question is, select the correct option to fill in the blank for the given line. What the line is given here? From a health article. But this line is given. Which line? The further line is given from a health article. Americans get the new Omicron specific COVID-19 vaccine before
हॉलोविन टू बूस्ट देयर इम्यूनिटी। बेटा यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यस, शुड या मस्ट। मॉरल ड्यूटी है तो विल, व्हाट ऑट टू आएगा, विल फॉर फ्यूचर आएगा। तो अब ये दो बच गए हमारे पास, मस्ट या शुड। बेटा कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है गवर्नमेंट के द्वारा तो डेफिनेटली वो क्या रहेगा, शुड में रहेगा, क्योंकि मस्ट जो आ रहा है मैंडेटरी होता है, उससे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो शुड विल बी द अप्रोप्रिएट आंसर हियर। So here it is a 4 question. Select the option that identifies the error and supplies the correction. Beta here options are given. Here it is identifying and also giving the correction both. So what our task is, just where the error is there and which is the correction we have to select. He had no accuse for attacking that old man. तो चलिए हम पहले चेक कर लेंगे। ही हैड, ही के साथ हैड भी लगता है, हैज भी लगता है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अटैकिंग द ओल्ड मैन, ओके, लेट्स सी चेकआउट कि ये है या नहीं है, आगे देख लेंगे। नो अक्यूज, अक्यूज का मीनिंग होता है जस्ट अ पर्सन, कोई इंसान को हम अगर से किसी चीज की सजा दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अक्यूज। वहां पे किसी को सजा तो नहीं दे रहा है, अक्यूज फॉर अटैकिंग द ओल्ड मैन, अक्यूज नहीं चाहिए, एक्सक्यूज। यस एग्जैक्टली यही होगा, मेरे को तो लग रहा है। देखेंगे आगे, रॉन्ग यूज ऑफ द वर्ड अक्यूज यूज हुआ है यहाँ पे, अननेसेसरी यूज किया गया है। नेक्स्ट फॉर yes, for is okay, for to attack नहीं, attacking and attack, no, this is also not. So the option B is the right one because accuse is not appropriate word here. So excuse, he had no excuse for attacking that old man, उसके पास कोई excuse ही नहीं है, the reason ही नहीं है, genuine reason. So here we are having question number 5. Fill in the blank by using the correct form of the word. वर्ड की फॉर्म लिखना है हमें, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, जस्ट वी हैव टू गो विद द वर्ब क्विकली। In the bracket for the given portion of the letter, this is the portion of a letter. Respected sir or madam, it is mentioned, I am Drishya, a member of NGO Parada. I dash write to you to bring to your notice the increasing effect of air pollution in our neighborhood and in the surrounding area. बेटा यहाँ पे हम देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि आई एम राइटिंग यही होगा। क्यों? क्योंकि जब पर्सन लिख रहा होता है द एक्शन वॉज गोइंग ऑन एट दैट टाइम। तो जनरली हम लोग जब कोई इश्यू को लेके आ रहे हैं, बाहर बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई एम राइटिंग ऐसे ही स्टार्ट करता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कैसे चल जाएगा, आई एम writing to you to bring to your notice the increasing effect of air pollution in our neighborhood and in the surrounding area. So hope that you have understood how to write the answer. Here 6th question is, complete the given sentence by filling in the blank with the correct option. Options are given. He is been working all day long. बेटा यहाँ पे एक रीजन बताया हुआ है, ही इज बीन वर्किंग ऑल द डे लॉन्ग, ही डैश टू बी वेरी टायर्ड। अब बेटा कोई काम कर रहा है तो ही मस्ट और शुड, ये दो में से कुछ आएगा। ऑप्शन में हम देखेंगे मस्ट तो दिया नहीं है हमारे पास, शुड दिया हुआ है, ऑब्वियसली शुड आएगा। वुड प्रोबेबली नहीं, कुड हो सकता है नहीं, माइट ये भी शायद बता रहा है। तो काम कर रहा है तो लॉजिकल रीजनिंग है बेटा, जहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग है तो वहाँ पे क्या आएगा, शुड आएगा। शुड या मस्ट आएगा, मस्ट नहीं दिया हुआ है तो शुड हमारा अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। बेटा यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है हमें एरर। चलिए देखेंगे, इंडिया एंड अमेरिका आर वंस, कभी बोल रहा है तो ऑब्वियसली आर कैसे आएगा यहाँ पे, वंस पास्ट के बारे में बात करो, वंस पार्ट ऑफ द सेम लैंडमास, एक ही लैंडमास के दोनों पार्ट थे। तो यहाँ पे वंस बता रहा है कि ये प्रेजेंट में नहीं चलेगा। आर वंस कैसे होता है, वर वंस। तो ऑब्वियसली हमारा एरर भी मिल गया, हमें करेक्शन भी मिल गया। आर एरर एंड करेक्शन वर, क्योंकि इंडिया एंड अमेरिका दो है, इसकी वजह से यहाँ पे आर नहीं वर आएगा। हियर क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द नरेशन ऑफ द डायलॉग। नरेशन आ गया यहाँ पे, डायलॉग है बेटा तो हम रिपोर्टेड स्पीच करना है। बिटवीन अजय एंड हिज क्लासमेट मोहन, यहाँ पे किसके बीच में बातचीत चल रही है, अजय और उसके क्लासमेट के बीच में। चलिए देखेंगे अजय क्या कह रहा है। अजय, डू यू वांट टू प्ले विद अस?
अजय पूछ रहा है डू यू वांट टू प्ले विद अस? मोहन क्या कहता है यस बट आई हैव बीन टू लेट. चलिए अब हमें क्या रिपोर्ट करना है. अजय आस्क्ड मोहन इफ ही वांटेड टू प्ले विद देम. देखो ये लाइन तो रिपोर्ट हो गया बेटा. अजय आस्क्ड टू मोहन, अजय पूछ रहा है मोहन से क्या. यहाँ पे यस आर नो टाइप ऑफ क्वेश्चन था. डू यू विथ अस क्वेश्चन मार्क आना चाहिए. डू आया है इफ, इसकी वजह से हम लोगों ने इफ का यूज किया. यू जाके ही हो गया. want to play, want जाके wanted हो गया. to play with us जाके them हो गया. अब ये लाइन को हमें रिपोर्ट करना है. मोहन replied to him, मोहन रिप्लाई दे रहा है पॉजिटिवली. यस बोला है ना इसलिए पॉजिटिव लिखा है. एंड और क्या बोल रहा है told him that I have been too late. अभी इसको हमें रिपोर्ट करना है बेटा. I have been too late. तो कैसा होगा. I जाके क्या होगा. कौन है मोहन, लड़का है लड़की है. यस लड़का है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आई जाके ही करेंगे. आई को ही में कन्वर्ट कर दिया. हैव जाके क्या होता है हैड. और बीन ही रहेगा. टू ही रहेगा. लेट विल लेट. तो हमें सिर्फ चेंज करना दो चीज थी ही एंड हैड. अगर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोगों को नहीं आता है तो एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का. जस्ट यू कैन वॉच दैट वीडियो. Ninth question is fill in the blank by choosing the correct option to complete the given sentence. Dash of mango trees in their garden bear fruits twice a year. बेटा twice a year मतलब वेरी रेयर चीज़ हो रही है. हर साल में एक मरतबा कोई भी ट्री है तो फ्रूट देता है. लेकिन यहाँ पे ट्वाइस बोलते तो वेरी रेयर रहेंगे. तो रेयर चीज़ बताने के लिए लिटिल तो नहीं यूज़ होगा. मच अर्गिस नहीं होगा. मोर भी नहीं होगा. तो बचा कौन सा हमारा सम. ऑब्वियसली सम ऑफ द मैंगो ट्रीज इन देयर गार्डन बियर फ्रूट ट्वाइस अ ईयर. सम कुछ झाड़. तो यहाँ पे स्केर्सिटी या कम बताने के वास्ते में हम लोगों को सम का यूज करना पड़ेगा. सम विल बी द अप्रोप्रिएट आंसर. 10th क्वेश्चन इज रिपोर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस. जस्ट हमें इन सेंटेंस को रिपोर्ट करना है. क्या बोल रहा है. माई मदर ऑफन सेज टू मी. क्या है. माई मदर ऑफन सेज टू मी. मेरी माँ हमेशा बोलते रहती है मुझे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. बेटा जो प्रोवर्ब्स हैं जो हमेशा ट्रू रहेंगे उनका हम टेंस नहीं चेंज करेंगे. वो चीज़ याद रखिए. और रिपोर्टिंग वो भी नहीं चेंज होगा. क्या होगा. कैसे लिखेंगे हम सेंटेंस. माई मदर ऑफन सेज टू मी. कनेक्टर लगाएंगे यहाँ पे एज यूजुअल जैसे रूल के हिसाब से. दैट आगे वाला जो है जस्ट हमें डबल इनवर्टेड कॉमा को रिमूव करना है. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जैसे का वैसा लिखना है. ऑनेस्टी एच स्मॉल कर देंगे हम. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. अच्छा जी ये चेंज क्यों नहीं हो रहा पहले वो समझ लीजिए. बेटा जब जनरल ट्रूथ हो रहा है जनरल ट्रूथ है ये हमेशा ट्रूथ रहेगा बेटा. यूनिवर्सल ट्रूथ है ये. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. और नहीं बोले तो कैसे रहते हैं जैसे जनरल ट्रूथ रहते हैं लाइक 2 and 2 makes 4. सन राइजेज इन द ईस्ट. ऐसे सेंटेंसेस कभी हम टेंस उनका चेंज नहीं करते. इसकी वजह से यहाँ पे जैसे का वैसा रखा हम लोगों ने. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी वाज नहीं किया. ऑनेस्टी है. इजी है. द है. बेस्ट है. पॉलिसी है. जस्ट हम एक कनेक्टर लगाए और डबल इनवर्टेड कॉमा को रिमूव कर दिए तो ये रिपोर्ट हो गया. 11th क्वेश्चन. Select the correct option to complete the narration of the dialogue between Mary and Tony. Mary, what Mary saying? Did you see my new umbrella? Isn't it fine? Tony, yes, it is. Did you buy it from the mall? Mary, no, your father has brought it for me. Now, these are the conversation. Here the dialogues is reported, but some part is missing. So which one is the right option? We have to fill here. Just we have to check out. Mary asked her son Tony. Mary क्या पूछी अपने बेटे को टोनी. Did you see my new umbrella? अब यही सेंटेंस को हम रिपोर्ट करेंगे. Did you see yes or no टाइप ऑफ सेंटेंस है तो if या weather लगेगा तो if या weather पूरे में if और weather है. ओके चलिए अब देखेंगे अब नेक्स्ट क्या लगेगा. डिड यू सी. यू इधर आ गया तो अब ही हो जाएगा. ही सब में है. वेरी गुड. अब उसके बाद डिड जाके क्या होता है हैड मीन्स पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है क्योंकि पास्ट इंडेफिनाइट है ये. पास्ट परफेक्ट हैड इन दोनों में यहाँ पे कैन कुड है तो ये दोनों कैंसिल हो गए अपने. अब ये दो बचे.
हैड, उसके बाद सी का V3 फॉर्म सीन होता है, बीन नहीं होता है, बीन सीन नो, ओके ये भी कैंसिल हो गया, हमारा राइट ऑप्शन हो गया कौन सा, फर्स्ट वन, इफ ही हैड सीन हर न्यू अम्ब्रेला। तो हमारा मेन चीज यही है बेटा, ये चीज अगर से हमें समझ में आ गई दैट वी कैन डू। अगर से आपको रिपोर्टेड स्पीच नहीं आता है तो चैनल में रिपोर्टेड स्पीच वाला जो वीडियो है उसको वॉच करें एक बार। Here is the 12th question. Identify the error in the following advertisement of our school. क्या है बेटा, स्कूल का एडवर्टाइजमेंट है, इसमें कुछ एरर्स हैं, हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। क्या लिखा हुआ है, MM स्कूल न्यू दिल्ली दिल्ली, वी गो बियॉन्ड अवर टेक्स्ट बुक्स बिकॉज नॉलेज नो नो बाउंड्स। बेटा हम लोग टेक्स्ट बुक के बाहर जाके पढ़ाते हैं, इन द सेंस जो टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है वो भी पढ़ाते हैं, क्योंकि नॉलेज की बॉन्डिंग्स नहीं होना चाहिए कि टेक्स्ट बुक में जितना उतना ही पढ़ाएंगे। तब यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है वी गो बियॉन्ड अवर टेक्स्ट बुक्स, ओके है, बिकॉज भी ओके है, नॉलेज नो ओके, यहाँ पे आ गया एरर, नॉलेज इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, यस क्या आएगा, नॉलेज नोज, के या नो प्लूरल वर्ब है तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब करेंगे क्योंकि नॉलेज सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, नॉलेज सॉरी KNOW नो, एरर है हमारा, क्या करेक्शन करेंगे, नोज, गॉट इट। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड the complete set of the questions, question number 1 to 12. So here we have covered reported speech, we have covered tenses, we have covered modals, we have covered subject and verb agreement, we have covered determiners. So no worries when we are studying well. So we will meet you in the next video with a new set of questions.